السلام علیکم ناظرین، کوریڈور ریکارڈر میں خوش آمدید۔ چین پاکستان اقتصادی راہداری کے ساتھ منسلک کہانیاں ریکارڈ کرتے ہوئے میں ہوں ملک ظفر۔ آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں۔ پاکستان نے منگل کو بین الاقوامی مالیاتی فنڈ IMF کے ساتھ اگلے سال کے بجٹ پر ایک وسیع معاہدے کا اعلان کیا، جس میں دیکھا گیا کہ اس کا حجم 9.9 ٹریلین روپے تک بڑھ گیا ہے، کیونکہ 1 جولائی سے حکومت نے 1 لاکھ روپے تک کمانے والے افراد اور پیٹرولیم لیوی پر ٹیکس دوبارہ شروع کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ چین اور پاکستان کی یونیورسٹیوں کی مشترکہ شرکت سے سائنسی تحقیق اور پیداوار دونوں میں مضبوط تکنیکی مدد حاصل ہوگی۔ اس کو تو بنانے کی ضرورت ہے نا کہ اگر ٹریٹمنٹ پلانٹ ہوں گے تو سمندر کے اندر انوائرمنٹ تباہ ہو رہا ہے، سمندر کا انوائرمنٹ تباہ ہو رہا ہے اور کراچی شہر کا انوائرمنٹ بھی تباہ ہو رہا ہے، کیوں کہ وہ سارے ٹریٹمنٹ پلانٹ بند ہیں۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں سب سے پہلے تازہ ترین خبروں پر۔ پاکستان نے منگل کو بین الاقوامی مالیاتی فنڈ IMF کے ساتھ اگلے سال کے بجٹ پر ایک وسیع معاہدے کا اعلان کیا، جس میں دیکھا گیا کہ اس کا حجم 9.9 ٹریلین روپے تک بڑھ گیا ہے، کیونکہ 1 جولائی سے حکومت نے 1 لاکھ روپے تک کمانے والے افراد اور پیٹرولیم لیوی پر ٹیکس دوبارہ شروع کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ اس معاہدے سے مارکیٹوں کو استحکام اور 4 ماہ کی طویل غیر یقینی صورتحال کو ختم کرنے میں مدد مل سکتی ہے، جس نے ملک کی کرنسی پر بہت زیادہ اثر ڈالا، افراط زر کی لہر کو جنم دیا اور مارکیٹوں اور سرمایہ کاروں کے اعتماد کو ختم کیا۔ روپے کے لحاظ سے پاکستان کی برآمدات میں گزشتہ سال کی اسی مدت کے مقابلے میں رواں مالی سال کے پہلے 11 مہینوں کے دوران 40% سے زائد کا اضافہ دیکھا گیا۔ دوسری جانب اسی عرصے کے دوران درآمدات کی مالیت میں تقریباً 60% اضافہ ہوا۔ برآمدات کی اہم اجناس نیٹ ویئر، ریڈی میڈ گارمنٹس، بیڈ ویئر، سوتی کپڑے، چاول اور میک اپ آرٹیکلز تھیں، اور درآمدات کی اہم اشیاء پیٹرولیم مصنوعات، قدرتی گیس، مایا پام آئل، آئرن اینڈ سٹیل، موٹر کاریں اور موبائل فون تھیں۔ پاکستان کی نان ٹیکسٹائل برآمدات سال بہ سال 27.40% سے بڑھ کر گزرنے والے مالی سال کے پہلے 11 مہینوں میں 11.25 بلین امریکی ڈالر تک پہنچ گئیں، جس کی وجہ بین الاقوامی احکامات کی جزوی بحالی اور حکومت کی سپورٹ سکیمز ہیں۔ مجموعی طور پر غیر ٹیکسٹائل سیکٹر میں سب سے زیادہ ترقی بنیادی ویلیو ایڈڈ سیکٹرز کے ذریعے ہوئی۔ اعداد و شمار سے معلوم ہوتا ہے کہ غیر ٹیکسٹائل سیکٹر کو ابھی تک کووڈ سے پہلے کی سطح پر مکمل آرڈرز موصول نہیں ہوئے۔ مالی سال 2021 میں 3 شعبوں میں چمڑے کے ملبوسات، آلات، جراحی اور انجینئرنگ کے سامان نے بہت سے ممالک میں لاک ڈاؤن کے باوجود برآمدی آمدنی میں اضافے کو برقرار رکھا ہے۔ وفاقی حکومت نے ملک کے تجارتی خسارے کو کم کرنے کے لیے 6 لاکھ ٹن چینی درآمد کرنے کے اپنے فیصلے کو واپس لینے کا اعلان کیا ہے، کیونکہ حکومتی دعویٰ ہے کہ یہ مقامی طور پر تیار کی جانے والی چینی سے زیادہ مہنگی ہوگی۔ وزارت تجارت کے ذرائع نے بتایا کہ درآمدی چینی کی قیمت تقریباً 110 روپے فی کلو ہے، جبکہ مقامی طور پر تیار کی جانے والی چینی کی قیمت 90 روپے فی کلو ہے۔ اشیاء خوردنوش کا درآمدی بل 29 ارب روپے تک پہنچ گیا ہے۔ سی پیک کے تحت پاک چین زرعی تعاون کے موضوع پر ایک سیمینار کا انعقاد مشترکہ طور پر سی پیک ایگریکلچر کوآپریشن سینٹر PMAS بارانی زرعی یونیورسٹی راولپنڈی اور ایشین انسٹیٹیوٹ آف ایکو سولائزیشن ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ایڈ نے مشترکہ طور پر کیا، تاکہ زرعی ترقی کے فروغ کے طریقے تلاش کرنے کے ساتھ ساتھ سی پیک کے تحت زرعی تعاون کے مواقعوں کو بھی سمجھا جا سکے۔ اجلاس میں ماہرین نے کہا کہ سی پیک کے ذریعے پاکستان میں نہ صرف زرعی شعبے کی بحالی کو یقینی بنایا جا سکتا ہے، بلکہ اس میں جدت لا کر غذائی تحفظ کو بھی یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ بینکوں کے ایک چینی کنسورشیم نے پاکستان کے ساتھ 2.3 بلین ڈالرز قرض کے معاہدے پر دستخط کیے ہیں اور چند دنوں میں اس رقم کی آمد متوقع ہے۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے یہ اعلان کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی جانب سے گزشتہ روز اس معاہدے پر دستخط کیے گئے تھے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے بھی چینی قیادت کا شکریہ ادا کیا۔ اس ماہ کے شروع میں مفتاح اسماعیل نے کہا تھا کہ یہ قرض ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر کو بڑھانے میں مدد کرے گا۔ کووڈ-19 کی وبا پھیلنے کے بعد سے چین میں زیر تعلیم 90 پاکستانی طلباء کی پہلی کھیپ اپنی تعلیم جاری رکھنے کے لیے چارٹرڈ پروازوں کے ذریعے چین واپس پہنچی ہے۔ وفاقی وزیر تعلیم رانا تنویر حسین طلباء کو الوداع کرنے ایئرپورٹ گئے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ نوجوانوں کو علم کے حصول میں مدد کرنا ملک کی ذمہ داری ہے۔ چین میں پاکستانی سفارت خانے کے اہلکار ان کے استقبال کے لیے ایئرپورٹ آئے۔
वफाकी हुकूमत ने बुध को तमाम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़े पैमाने पर इजाफे का ऐलान किया है। खास तौर पर पेट्रोल की कीमत में 24 रुपए फी लीटर और हाई स्पीड डीजल HSD की कीमतों में 59.16 रुपए फी लीटर इजाफा किया गया है। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि हुकूमत के पास मुल्क बचाने का बड़ा चैलेंज है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा अगरचे मुश्किल फैसला था, ताहम हुकूमत गरीबों का ख्याल रखेगी। हुकूमत ने के इलेक्ट्रिक के सार्फिन के लिए बिजली के निर्खों में इजाफे पर इत्तफाक किया और 139 अरब रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट्स की मंजूरी भी दी, जिसमें पावर प्लांट्स के लिए 113 बिलियन रुपए भी शामिल हैं, ताकि वो प्लांट्स चलाते रहें और ईंधन की फराहमी के लिए अदायगियों से बच सकें। फ्लोर मिल्स ने आटे की मुख्तलिफ इकसाम की कीमतों में मजीद 6 रुपए फी किलो इजाफा कर दिया। गंदम के गैर पैदावारी इलाकों को गंदम की खरीदारी के सीजन के आगाज से ही गंदम के बहरान का सामना है। गुज़श्ता माह पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन PFMA ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर जोर दिया कि वो गंदम और गंदम की मसनूआत की आज़ादाना नकलो हरकत की इजाज़त दें, ताकि बुनियादी अशियाए खुर्दोनोश की मुनासिब कीमत पर दस्तयाबी को यकीनी बनाया जा सके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी ताजरों को पाकिस्तान के मुख्तलिफ इक्तिसादी शोबों में सरमायाकारी करने की दावत दी, क्योंकि हुकूमत सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत फराहम करेगी और हर किस्म की सरकारी और दफ्तरी रुकावटों को दूर करेगी। उन्होंने यकीन दिलाया कि सऊदी ताजरों की सरमायाकारी मुकम्मल तौर पर महफूज रहेगी और वो अपना मुनाफा कमाकर वापस भेज सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि माली साल 2022-2023 के बजट में हुक्मरान मखलूत हुकूमत ने अमीरों पर टैक्स लगाकर मुआशी बोझ को गरीबों से अमीरों पर मुंतकिल करने का फैसला किया है। वज़ीर आज़म ने उम्मीद जाहिर की कि जो लोग मराहत याफ्ता हैं वो खुशी से इस नाजुक मोड़ पर मुल्क की मदद करेंगे और कुर्बानी के जज्बे का मुजाहिरा करेंगे। वज़ीर आज़म का ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब मुल्क में महंगाई बढ़ गई है और हुकूमत ईंधन और तवानाई की कीमतों में इजाफा कर रही है। इस इजाफे के असरात को दूर करने के लिए हुकूमत ने माली साल 2023 के बजट में टैक्स के काबिल तनख्वाह की बुनियादी हद को दुगना करके 1.2 मिलियन रुपए सालाना करके सख्त दबाव वाले तनख्वाहदार लोगों को जुज़वी रिलीफ फराहम किया है। इसके साथ ही हुकूमत ने ज्यादातर अमीर अफराद और अमीरों की जमीनों पर बराह रास्त टैक्स लगाकर टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने की कोशिश की है। बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज के माहिरीन इक्तिसादियात अगले साल अमरीकी कसाद बाजारी का तकरीबन 40% इम्कान देखते हैं। अफरात ज़र मुसलसल बुलंद रहने के साथ वो तवक्को करते हैं कि अगले साल की दूसरी छमाही तक अमरीका की मजमूई मुकामी पैदावार GDP की नमू तकरीबन 0 हो जाएगी। मजमूई तौर पर पेट्रोलियम ग्रुप की दरामदात में गुज़श्ता साल की इसी मुद्दत के मुकाबले में रवा माली साल 2021-2022 के पहले 11 महीनों के दौरान तकरीबन 100% इजाफा देखा गया है। बड़े पैमाने पर असबाब पेट्रोलियम और पेट्रोलियम मसनूआत की दरामद में 126.17% इजाफा हुआ, जो कि गुज़श्ता साल 4.431 बिलियन अमरीकी डॉलर से बढ़कर 10.022 बिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुंच गया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मंगल को इन रिपोर्टों को मुस्तरद कर दिया जिसमें दावा किया गया था कि इनके ज़र मुबादला के ज़खायर खत्म हो गए हैं, और वाज़ेह किया कि ना तो मुल्क के बैंकों के पास अमरीकी डॉलर खत्म हुए हैं और ना ही मरकजी बैंक ने दरामदी अदायगियां रोकी हैं। मरकजी बैंक का यह बयान दरामदी अदायगियों की मुअत्तली के साथ उसके ज़खायर के खतरनाक हद तक कम सतह पर गिरने की इतलात के दौरान आया है। गवादर पोर्ट के इलाके में आजमाइशी बुनियादों पर कामयाबी से लगाया गया चीनी पौधा चुनसौ न सिर्फ मकामी लोगों की आमदनी में इजाफे का बायस बनेगा, बल्कि पानी और मिट्टी के कटाव को भी कम कर सकता है। ये समाज और माहौल दोस्त पौधा है। चुनसौ के अलावा गवादर में और कौन से पौधे काश्त किए जा रहे हैं? ये फसल की कटाई का मौसम है। आइए गवादर जाकर एक नज़र डालते हैं। उन्नीस 1960 और 1970 की दहाइयों में दुनिया भर में खुर्दनी फंगस और दवाओं की फंगस जैसे शाइटिक, लकड़ी के कान और चमकदार गेनोडर्मा की मसनूई काश्त में बुनियादी तौर पर लकड़ी का इस्तेमाल किया गया।
चीन में हर साल 10 मिलियन क्यूबिक मीटर से ज्यादा चौड़े पत्तों वाले जंगल को अकेले शेटक्स काश्त करने के लिए काटा जाता है, जिसके नतीजे में संगीन माहौलियाती मसाइल और मशरूम और जंगल के दरमियान तजाद पैदा होता है। आखिरकार 1986 में जिनकाओ नामी जड़ी बूटियों से भरे पौधों को जैसे खुर्दनियों और दवाओं की फंगस के लिए सकाफती जरिए के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, कामयाबी से काश्त किया गया, जिसे बैनुल-अक़वामी माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ का वर्ल्ड इकोलॉजिकल सेफ्टी अवार्ड मिला। जहां मकई काश्त की जा सकती है वहां जुनकाओ लगाया जा सकता है। मकई पाकिस्तान की अहम मुआशी फसलों में से एक है, लिहाजा पाकिस्तान की आबो हवा इसके लिए बेहतरीन है। सिंकियांग, काशगर और होतन जहां पाकिस्तान जैसी आबो हवा है में जुनकाओ की फ़ी एकड़ पैदावार 13 से 15 टन तक पहुंच सकती है, जो मकई से 2 से 3 गुना ज़्यादा है। इसलिए मेरे ख्याल में ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में भी काबिल अमल है। हिफाजती तावन तंजीम माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कम कीमत, फौरी असर और लोगों की रोजी रोटी के लिए फ़ायदेमंद खसूसियात के साथ चीन से आने वाले इस जादुई पौधे ने न सिर्फ चीन के बंजर और गरीब इलाकों के लोगों को गुर्बत से निजात दिलाई, बल्कि गवादर पोर्ट तक भी पहुंची, जहां इसने जड़ें पकड़ी और अब भरपूर तरीके से परवान चढ़ रहे हैं। किंगरास है, ये जो है चाइनीज़ पौधा है, आप देख सकते हैं, ये भी पड़ा हुआ है। एक ट्रे है, इसको हम घुमाते हैं पानी देने के लिए, आप देख सकते हैं। खुम्बियों को बुनियादी तौर पर हर आधे महीने से 1 महीने में एक बार काटा जा सकता है। ये जड़ी बूटियों की अच्छी किस्म है। हमारे पास भेड़ों का फार्म है और भेड़ें इन्हें बहुत पसंद करती हैं। भेड़ों का फुजला खेत की मिट्टी से मिलकर नामियाती खाद बन जाता है, जो फसलों के लिए ग़िज़ाइयत से भरपूर होता है। जिनकाओ में खाम प्रोटीन की मिकदार 8% से 16% है और जिनकाओ से ताज़ा जड़ी बूटियों की फी हेक्टर सालाना पैदावार 450 टन है, जो 30 मवेशियों या 300 भेड़ों को पाल सकती है। गवादर पोर्ट के मवेशियों के लिए ये मुश्किल है कि वो इतनी ज़्यादा प्रोटीन और ग़िज़ाइयत वाली इस किस्म की जड़ी बूटियों को पसंद न करें। ये पाकिस्तान के लिए बहुत मुफीद है, क्योंकि ये ना सिर्फ मकामी बाशिंदों के लिए आमदन का ज़रिया बन सकता है, बल्कि मकामी सनतों और मुआशी तरक्की को फ़रोग़ देने के साथ साथ ज़मीन के कटाव को भी कंट्रोल कर सकता है, जिसके समाजी और माहौलियाती फ़वाइद हैं। जुनकाओ की उभरती हुई सनत की तरक्की पाकिस्तान में माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़, रोज़गार में इजाफ़े, गुर्बत में कमी और देरपा तरक्की के हुसूल के लिए ज़रूरी है। घास गवादर में अच्छे मयार की जड़ी बूटियां ज्यादा लाती है। गवादर में साल भर उगने वाले केले भी इस नए पड़ोसी को पसंद करते हैं। क्यों? हम खुम्बियों के साथ केले की काश्त कर रहे हैं। मूसा नाना केले की एक मुकामी किस्म है। खुश्क साली और आला दर्जा हरारत के माहौल से मुताबिकत रखती है, जिसकी वजह से इन्हें ग्रीन हाउस लगाने के लिए कामयाबी के साथ मुंतखब किया गया। ताहम लोग केले और जिनकाओ को एक साथ उगाने के लिए जगह क्यों निचोड़ते हैं? चूंकि खुम्बी की जड़ सतह पर होती है, जबकि केले के दरख्त की जड़ गहरी चिपक जाती है, इसलिए बाहम काश्त करके पानी के वसाइल को ज्यादा मौसर तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। इस तरह नामियाती खाद के इस्तेमाल के बाद केले ज्यादा पैदावार के साथ बड़े हो जाएंगे। यहाँ सिर्फ जिनकाओ और केले ही नहीं, बल्कि बहुत से पौधे भी हैं जो पहले बंजर इलाकों में जिंदा नहीं रह सकते थे। हम देख सकते हैं कि इसकी जड़ और पौधा बहुत मजबूत हैं। इंजीर की काफी पैदावार मुतवक्के है। यहाँ का कचरा मुकामी फार्मों की जरूरत को पूरा कर सकता है। इसके अलावा हम अनाब की कुछ अच्छी अक़साम को जड़ों के साथ पैवंद करते हैं। इस वक्त अनाब के दरख्तों पर बूर आया हुआ है और कुछ पर छोटे फल भी लगे हुए हैं। इस वक्त केले, सुर्ख खजूर, आर्किड और अंजीर वगैरह के तकरीबन 1 लाख पौधे यहाँ लगाए गए हैं। बेल्ट एंड रोड इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर फॉर ट्रॉपिकल एरिड नॉन वुड फॉरेस्ट, यहाँ उगने वाले पौधे ग्रीन हाउस में फूलों की तरह नहीं हैं, क्योंकि वो पहले ही बहुत सख्त अनासर का मुकाबला करने के काबिल हो चुके हैं। ये एक टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी है जो 2019 में मुकम्मल हुई थी। अब यहाँ पैदावार बुनियादी तौर पर पौधे लगाने और बीजों की अफजाइश के लिए हो रही है। ये पौधे बढ़ रहे हैं और जब ये बड़े हो जाएंगे इन्हें अगले ग्रीन हाउस में मुंतकिल कर दिया जाएगा ताकि मौसम की सख्तियों का मुकाबला कर सकें, जिसके बाद इन्हें मुकामी इलाके में फराहम किया जाएगा।
इसके अलावा इन पौधों में जादुई खसूसियत भी होती है, यानी ये रेतली जमीन या नमकीन अलकली वाली जमीन में भी खिलते हैं और फल देते हैं। ये कौन सी ब्लैक टेक्नोलॉजी है? माजी में यहाँ बुनियादी तौर पर नमकीन शोरज़दा ज़मीन थी। हमने मिट्टी को बेहतर किया और मिट्टी में मौजूद तेज़ाबी मादों का तनासुब दुरुस्त किया। अब हमारी कोशिशों से फलदार पौधे पहले ही बढ़ रहे हैं और फल दे रहे हैं। खास तौर पर उन्होंने मुकामी भेड़ों के फार्मों से इकट्ठी की गई नामियाती खाद और मिट्टी के साथ पत्ते जैसे एक खास तनासब में मिलाया ताकि मुकामी मिट्टी की पीएच कदर और जरखेजी को बेहतर बनाया जा सके। मजीद बरआ फलीदार पौधे लगाकर और फलीदार रेजोबिया के नाइट्रोजन फिक्सेशन को इस्तेमाल करने से मुकामी ज़मीनी हालात में बहुत बेहतरी आई है। फसल की काश्त के अमल में पाकिस्तान से मुकामी प्रोफेसरों को पेशा वाराना तकनीकी मदद फराहम करने के लिए मदऊ किया गया था। हमने पाकिस्तानी प्रोफेसर्स को दावत दी है कि वो हमारे साथ साइंसी तहकीक में ताउन करें, क्योंकि वो मुकामी इलाके से ज़्यादा वाकिफ हैं। मैं समझता हूँ कि चीन और पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों की मुश्तरका शिरकत से साइंसी तहकीक और पैदावार दोनों में मजबूत तकनीकी मदद हासिल होगी। पाकिस्तानी प्रोफेसर्स की तरफ से फराहम करदा तकनीकी हमायत के साथ ये भी नागुज़ीर है कि पाकिस्तानी मुलाजमीन पौधों की अच्छी देखभाल करें। पाकिस्तानी मुलाजमीन ने फख्र से बताया कि उन्होंने इन पौधों को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते देखा है। आहिस्ता आहिस्ता इनको बना दिया है और काफ़ी सारे पौधे, ये चना के पौधे हैं सर, उधर से आए, इनकी कलमें भी लगती है और काफ़ी सारे उधर भी लगे हुए हैं, जैसे कि अंजीर हो गया और हरे मिर्च हो गए और टमाटर वगैरह हो गए और अपने काफ़ी सारे हैं पौधे अभी जिनका किन्हीं का नाम भी पता नहीं है इधर, और भी अच्छा बनेगा। जो वक्त गुजर रहा है वो खुद से लगाई गई इन फसलों से ज़्यादा वाकिफ होते जा रहे हैं और पौधों से उनकी मोहब्बत और गहरी होती जा रही है। काफ़ी हमारी दिल लग गई है। पहले तो हमें पता नहीं था इन चीज़ों का, कि अभी हमें पता भी हो गया है और दिल लग गया है हमारा। हम खुद लगा लेते हैं, एक दफ़ा बोल देते हैं तो हम खुद बहर अंजीर लगे हुए हैं, पहले जो हमारे बॉस ने आपको दिखाए वो भी लगे हुए हैं उधर। मुस्तकबिल पर नजर डालते हुए यांग सयांग ने बताया कि मरकज ने मुकामी कारकुनों को तरबियत देने के लिए गवादर क्लासरूम कायम किया है। इसका इफ्तिताह इस साल मार्च में हुआ और इसने मुकामी इलाके के लिए जदीद ज़रई हुनरमंद कारकुनों की पहली खेप को तरबियत दी है, जिसने किसानों के रोजगार को बेहतर बनाने और खुद पैदावार का एहसास करने के लिए ज़राअत और गैर जंगलाती सनतों की मुकामी तरक्की के लिए एक मजबूत बुनियाद रखी है। बुनियादी तौर पर ग्रीन हाउस की पैदावार और मुकामी पौधे लगाने पर तवज्जो मरकूज करते हुए हम मुकामी लोगों को ये सिखाते हैं कि मुकामी तौर पर पौधे लगाने के लिए किस तरह मौजू जदीद ज़रई और जंगलात के औजार इस्तेमाल किए जाएं और नक़द आवर फसलों की कटाई और इन्हें महफूज कैसे किया जाए। 2 साल से मैं इधर रह रहा हूँ, घर भी गवादर है मेरा, बच्चे इधर मेरे पढ़ते हैं, हमारी दिल खुश है चैनीज़ों के साथ काम करने में। हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हर रोज़ सीवरेज के पानी की एक बड़ी तादाद वजूद में आती है। ये पानी कहाँ जाता है? क्या सीवरेज का पानी साफ़ करने के बाद दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है? आइए एक नज़र डालते हैं। देखिए, इसलिए कि इस वक्त यहाँ पर हमारे पास 3 ट्रीटमेंट प्लांट हैं, TP1, TP2, TP3, चौथा कुरंगी बन रहा था। लेकिन बदकिस्मती शहर की ये है कि शहर में जो लोग जिस शहर को देखते हैं या इस शहर में, तो उन्होंने इस शहर में जितने भी इस वक्त ट्रीटमेंट प्लांट हैं सारे बंद पड़े हैं। यानी 450 या 500 MGD पानी जो है वो डायरेक्ट समुंदर में जा रहा है। तो उसको तो बनाने की ज़रूरत है ना, कि अगर ट्रीटमेंट प्लांट होंगे तो समुंदर के अंदर इन्वायरमेंट तबाह हो रहा है, समुंदर का इन्वायरमेंट तबाह हो रहा है और कराची शहर का इन्वायरमेंट भी तबाह हो रहा है। क्यों कि वो सारे ट्रीटमेंट प्लांट बंद हैं और कराची शहर में इस वक्त 1 गैलन भी जो है ना वो ट्रीटमेंट प्लांट, 1 गैलन पानी भी ट्रीट नहीं हो रहा है। और जो है वो इस वक्त जो ज़रूरी है वो एक 400 MGD का कुरंगी में बन रहा है, लेकिन वो भी रुका हुआ है फंड ना होने की वजह से। और जैसे जैसे कॉस्ट बढ़ती जाती है, जैसे जैसे दिन बढ़ता जाता है, अब एक चीज़ अप्रूव हुई 100 रुपये में और वो अगर 1 साल के बाद होगी तो लाजमी है कि उसके पैसे बढ़ जाते हैं। जब पैसे बढ़ जाते हैं तो फिर वो दोबारा पैसे मांगते हैं और इसके बाद फिर वो काम रुक जाता है और वो
इस हवाले से अब तक कराची में इस शहर की बदकिस्मती है कि ट्रीटमेंट प्लांट कोई भी काम नहीं कर रहा है। अगरचे कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती शहर है, लेकिन सनती तरक्की की वजह से ये बदतरीन शोर, फ़ज़ाई और आबी आलूदगी का भी शिकार है। शहर की तकरीबन 40% आबादी बीमारी का शिकार है। तमाम शोबा हाय ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग परेशान हैं क्योंकि आलूदगी का मसला काफ़ी अरसे से हल नहीं हो सका है। कराची में कुदरती तौर पे जो पानी की दो बड़ी गुज़रगाहें थी, लियारी नदी और मलीर नदी, ये बरसाती पानी का बहुत बड़ा ज़रिया थी, लेकिन हमने क्या किया है कि इनको भी आलूदगी का और गंदे नालों का ज़रिया बना दिया। इसके अलावा छोटे बड़े कराची में 41 नाले हैं जो मलीर नदी और लियारी नदी में गिरते हैं, और उनका हाल ये है कि तकरीबन इस शहर में रोज़ाना 500 मिलियन गैलन सेवरेज पैदा होता है, ठीक है, डोमेस्टिक भी इंडस्ट्री भी, और उसके साथ तकरीबन 12,000 टन कचरा भी पैदा होता है। वो सारा के सारा मिलजुल के हम अपने नदी नालों में बहा देते हैं, अल्टीमेटली वो जाके समंदर में मिल जाता है। आप यूँ समझिए कि जो हमारे ये आबी वसाइल थे, नदियाँ थी, नाले थे, समंदर है, उसे हमने गटर बना दिया है, ठीक है, और हमें इसका कोई एहसास नहीं है कि हम ये क्या तबाह कर रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसी बात है, हमने अपना घर का गंदा पानी बाहर निकाल दिया, अब हमें इससे कोई गर्ज नहीं है कि वो कहाँ जाता है। हम ये भूल जाते हैं कि वो गंदा पानी हमारी चप्पलों और जूतों के ज़रिए दोबारा घर में जरासीम के साथ आ जाएगा। इसके लिए एक बेहद जामे हिकमत अमली की ज़रूरत है जो इसको इस प्रॉब्लम को एड्रेस कर सके। WHO की जानिब से 2022 में किए गए एक मुताले और सर्वे में कराची दुनिया के 10 आलूदा शहरों में तीसरे नंबर पर था। जैसे जैसे आलमी मईशत तरक्की कर रही है और लोगों का मयार ज़िंदगी बेहतर हो रहा है, वो तेज़ी से कराची के मसाइल पर तवज्जो दे रहे हैं और उन पर गौर कर रहे हैं। आप भी ये तजर्बा कर सकते हैं। पानी की जो लाइनें हैं, सेवरेज की जो लाइनें हैं, तो हमारा जो हमारी प्रैक्टिस है वो ये है कि जब हम घर बनाते हैं, बिल्डिंगें बनाते हैं, तो हम अपनी हिस्से की तो डाल देते हैं ना लाइनें, लेकिन हम उसको मेन लाइनों से कनेक्ट नहीं करते जाके, या करते भी हैं तो ऐसे ही हमें कुछ पता नहीं होता, टेक्निकल हमें नहीं पता होता, हम समझते हैं हुकूमत का काम है। तो वो मेक श्योर कि वो जो नेटवर्किंग है वो पूरी हो, बड़ी लाइनों से मिले, इस तरह के प्लांट्स और इस तरह के मशीनरी इस्तेमाल किया जाए कि ये नालों में और लाइनों में कचरा फंसे नहीं, कहीं फ़्लो इसका तेज़ हो, और पूरा शहर जो है वो इस एक जामे हिकमत अमली के ज़रिए, ये ना हो कि आपके इलाके में अलग काम हो रहा है, दूसरे इलाके में अलग हो रहा है, वो फिर आके आपके नाले तोड़ गए, आप जाके उनके नाले तोड़ गए। फिर दूसरी बात ये है कि जब आबादी आपके सामने आ जाएगी तो आप ज़ाहिर है उनके रहाइश के लिए भी प्लानिंग करेंगे। तो यूँ जगह जगह जो तजावीज़ात होती हैं, नालों में लोग घर बना के पूरी बस्तियाँ बना के बैठ जाते हैं, उससे भी ज़ाहिर है आप महफूज हो जाएंगे। सिर्फ गुज्जर नाले पे हमने 14,000 तजावीज़ात जो हैं वहाँ से ख़त्म की थी पिछले साल सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे। तो ये एक मल्टीपल इशू है, तो इसके सोल्यूशन भी मल्टीपल होंगे, लेकिन एक ही उसको लेंस से देखना पड़ेगा, उसकी हिकमत अमली जो होगी वो एक ही होगी, जामे किस्म की, और आप फिर देखिएगा कि आपकी सेहत पे उठने वाला पैसा भी कम हो जाएगा, आपकी मरीन लाइफ भी बेहतर हो जाएगी। बहुत सी मछलियाँ हैं जिनकी नस्लें यहाँ से ख़त्म हो गई हैं, हो सकता है वो रिवाइव हो जाएँ। मैंग्रोव्स की कई अक़साम हमने खो दी हैं, दोबारा हम उनका तजर्बा करके उनको रिवाइव कर सकते हैं। हम अपने साहिलों को गटर क्यों बना रहे हैं, हम उन्हें खूबसूरत तफरी मुकाम भी तो बना सकते हैं ना। हम इको टूरिज़म के मंसूबे बना सकते हैं शहर के करीब, ताकि लोग आएँ, देख सकें। अल्लाह ताला ने इतना बड़ा साहिल 1,000 किलोमीटर से ज़्यादा तवील साहिल हमें दिया है, तो हम क्यों चाहते हैं कि उसको हम गटर बना के डंप कर दें। उसको हम बेहतरीन तरीके से बना सकते हैं। दुनिया भर में मिसालें आपके सामने हैं, और ज़ाहिर रिसोर्सेज की ज़रूरत तो पड़ेगी, लेकिन अगर आप देखेंगे कि आप सेहत की मद में और माहौलियाती तनज़्ज़ुली की सीरत में जो कीमत अदा कर रहे हैं वो इससे कहीं कम होगी, जो इस निज़ाम को ठीक करने पे लगेगी। तो ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, चंद सालों में हम इसको ठीक कर सकते हैं। सेवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की अहमियत सेवरेज से आलूदगी को अलग करने और इसे दूर करने के लिए पेशावराना सहूलियात और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल, नुकसानदेह मादों को बेज़रर और मुफीद मादों में तब्दील करने और पानी को साफ करने और वसाइल का भरपूर इस्तेमाल करने में मुज़मिर है। पाकिस्तान ने अभी सेवरेज की सफाई शुरू की है और इसकी कोई अच्छी बुनियाद नहीं है। इसके शहरी सेवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की तामीर भी पीछे है। पहले हमारे पास कराची वाटर स्प्रेड में ट्रीटमेंट प्लांट थे, एक महमूदाबाद पे था, एक साइड एरिया में, जो TP1 और TP2 कहलाते थे। तो अब दोबारा उनको हम रिवाइव कर रहे हैं। S3 प्रोजेक्ट इस वक्त हमारा जो है ना वो ऑनगोइंग है, जिसमें इनकी रिवाइवल और वो चीज़ें। 10 मई को हुकूमत सिंध ने कराची के सेवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के मंसूबों की प्री क्वालिफिकेशन नोटिस जारी किया। इन मंसूबों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की सूरत में नाफिज किया जाएगा। प्रोजेक्ट के दायरा कार में
1,59,113.1 क्यूबिक मीटर फी दिन की प्रोसेसिंग की सलाहियत के साथ गंदे पानी की सफाई के प्लांट का डिजाइन और फ्राहमी, पानी के दाखिले की सिविल इंजीनियरिंग और फीड पंप और फिल्टर की तंसीब वगैरह शामिल हैं। देखिए, इंडस्ट्रीज़ के हवाले से जैसे हम अभी ट्रीटमेंट प्लांट साइड में कर रहे हैं, तो उस ट्रीटमेंट प्लांट से हम उनकी इस वक्त रिक्वायरमेंट है वाटर सप्लाई की, जो इंडस्ट्रीज़ की हम नहीं पूरी कर पा रहे इस वक्त, जो पोजीशन है वाटर सप्लाई की पूरे कराची के लिए, तो वो भी हम उसमें ट्रीटमेंट प्लांट वन साइड पे हमने वो किया हुआ है, तो वो ट्रीट पानी होगा। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट इस वक्त जो है ना ऑनगोइंग है, तो वो पानी ट्रीट होकर हम इंडस्ट्रीज़ को उससे फ़ायदा होगा। और बेसिकली इंडस्ट्री के देखेंगे पूरा इन्वायरमेंट को अफेक्ट करता है, तो इंडस्ट्रीज़ के जो रिलेटेड सारी चीज़ें अफेक्ट होती हैं, कि इन्वायरमेंट अफेक्ट होगा तो हर चीज़ अफेक्ट होती है, जिसमें ह्यूमन हेल्थ है, उसके साथ बहुत सी चीज़ें जो है ना आपके ह्यूज फंडिंग की ज़रूरत थी, जो गवर्नमेंट ने फिर S3 प्रोजेक्ट एक जो है ना ऑर्गेनाइज हुआ, जो जिसमें पूरी जो नालों में डायरेक्ट सीवरेज जा रहा था उसको हमने कैटर किया है। कैटर करने के बाद वो कंड्यूट डली हैं, कंड्यूट वो लेके जाके वो जो सीवरेज को ट्रीटमेंट प्लांट पे वो डिस्पोज ऑफ करेंगी। ट्रीट होने के बाद फिर हम उसको दोबारा समंदर में जो है ना वो करेंगे। वो इस वक्त प्रोजेक्ट ऑन गोइंग है इस वक्त S3 प्रोजेक्ट के नाम से, और उसमें हम ट्रीटमेंट प्लांट जो है ना मुख्तलिफ जगह पे वो हो रहा है। इसमें एक साइट एरिया में है, एक बारीपुर पे है, एक महमूदाबाद है, एक नया जो है ना वो बनने जा रहा है मलीर बेसन पे, जो मलीर रिवर में जो भी सीवरेज आ रहा होगा तो उसको हम कैटर करके उसके ज़रिए वहाँ पे प्रपोज है, वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में भी उसकी जो है ना वो है। और एक साइड एरिया में तो एक नई चीज़ है कि हम सीवरेज को ट्रीट करके जो पानी को इंडस्ट्रीज़ के लिए भी हम चाह रहे हैं कि हम उनको वो दे दें, तो एक प्रोजेक्ट वो भी एक उसमें। कराची सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट इर्द गिर्द के पानी के माहौल को बहुत बेहतर बनाएगा और आबी आलूदगी पर काबू पाने, पानी के मयार और मकामी वाटरशेड के माहौलियाती तवाज़न में अहम किरदार अदा करेगा। देखिए ना, इन्वायरमेंट में तो बहुत बड़ा फ़ायदा ही होगा। एक समुंदर पूरे का पूरा क्लीन हो जाएगा। समुंदर में जो मामलात हैं, इसी तरीके से तमाम बीमारियां और ये तमाम मामलात शहर के अंदर जितना भी ट्रीटमेंट का विदाउट ट्रीटमेंट पानी चल रहा है और वो शहर में रोडों पे फैला होता है, अगर ये ट्रीटमेंट के हवाले से ट्रीटमेंट हो चुका हो तो फिर इतना कोई नुकसान थोड़ी पैदा करेगा। दुनिया में तो ट्रीटमेंट प्लांट का जो पानी है, आप मालदीव चले जाएँ तो वो ट्रीटमेंट का पानी प्लांट वो रिसाइकिल होता है, रिसाइकिल होकर वो दूसरे कामों के लिए इस्तेमाल होता है। आपका कराची दुनिया रिहाइश के लिहाज से दुनिया के बदतरीन शहरों में शामिल हो चुका है, तो ये उस लिस्ट से निकल आएगा, ये बेहतरीन शहरों में शामिल हो सकता है। और ये सारा पानी जो हम ट्रीटमेंट प्लांट के बाद हासिल करेंगे, ये इतना साफ़ पानी होगा कि इसको आप बहुत से कामों में इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन आप वहीं मछली की फार्मिंग कर सकते हैं, झींगों की फार्मिंग कर सकते हैं, आप वहाँ झील बना के इको टूरिज़म के लिए कोई स्पॉट लगा सकते हैं, वहाँ छोटी सी चाय खाने वगैरह का एहतमाम कर सकते हैं, कुर्सियाँ डाल सकते हैं, बच्चे ख़वातीन वहाँ बच्चों के खेलने की चीज़ें लगा सकते हैं, साइकिलिंग के लिए पाथ बना सकते हैं, छोटे छोटे झूले लगा सकते हैं। तो वो एक जगह जहाँ आप नाक पकड़े बगैर नहीं खड़े रह सकते, वहाँ आपको बच्चे खेलते कूदते नज़र आएंगे, ख़वातीन और फैमिली वाले बैठे हुए नज़र आएंगे। आज का कॉरिडोर रिकॉर्डर यही तक, मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए शुक्रिया।